یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ گئے. عمران خان نے 1.5 سال جیل میں بیٹھ کے تقریباً 4-5 دن ایک ہفتے میں ججز کا سامنا کیا. اور یہ عمران خان اگر کل جو کیس میں جب بیل ہوئی ہے تو عمران خان کو میرٹ کے اوپر ہوئی ہے. آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہر کیس دم توڑ گیا. جب سارے کیسز دم توڑ گئے جو کل ہوا تھا، اور کل ہمیں کہا گیا تھا کہ آج عمران خان رہا ہو جائیں گے، تو کل ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا. اور ہم نے کہا امپلائیز کو، ہمیں یقین، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کل رہا ہو جائیں گے؟ اب نہ ہم خوشی منا سکیں. ہمیں خوشی بھی تھی لیکن ہماری خوشی بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمیں نہیں اعتبار تھا کہ یہ جو پیشکش کر رہے ہیں یہ آیا پورا اتریں گے اس پہ کہ نہیں. تو جب سارے کیسز ختم ہو گئے، رات کو ایک مزاحیہ قسم کا کیس جو 28 ستمبر کو پنڈی میں احتجاج ہوا تھا، اس کے لیے آج ہم نکل کر آ رہے ہیں. جب عمران خان کو جج آیا، جلدی پہنچ گئے اور انہوں نے عمران خان کی 5 دن کی پولیس کو ریمانڈ دے دی ہے نا، پولیس کو ریمانڈ دے دی ہے، کیونکہ عمران خان نے کی اکسانے کے اوپر کیا کیا ہوا تھا پنڈی میں. یہ سن لے 5 دن عمران خان ریمانڈ پہ کیوں ہیں. 5 دن عمران خان اس لیے ریمانڈ پہ کیونکہ پولیس ان کی تحقیقات کرنا چاہ رہی ہے کہ 2 پولیس والوں نے، یا نہیں شاید ایک پولیس والے نے یہ بتایا کہ اس کے گریبان کے شاید بٹن ٹوٹ گئے اور ایک گاڑی کو آگ لگائی جانے لگی تھی اور پولیس والوں نے بچا لیا. اور یہ 2 ہے اور ایک اور اس قسم کی کوئی چیز تھی. اور اس کی وجہ سے یہ 2 چیزیں اس لیے ہوئیں کیونکہ عمران خان نے ان کو اکسایا تھا جیل میں بیٹھ کے. جیل میں بیٹھ کے اکسایا تھا. اور اب 5 دن کے لیے عمران خان اس سلسلے میں ریمانڈ پہ ہیں، پولیس کسٹڈی میں آ گئے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. اب میں بتاتی ہوں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے. عمران خان نے کہا اس سے مجھے پتہ چلا ہے ان کی نیتیں کیا ہیں اور انہوں نے یہ بات کیوں کی. انہوں نے کہا کل مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ 10 دن کے لیے 24 تاریخ کا احتجاج ملتوی کر دیں. جب 10 دن کے لیے ملتوی کریں گے اس کے جو عوض یہ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اب 10 دن ملتوی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلا قدم یہ ہوگا کہ آپ جو ناحق قید میں ہیں ان کو آپ رہا کریں. تو انہوں نے کیا کیا، رات تک انہوں نے جو ایک لیڈر ہے ناحق قیدیوں کا، عمران خان اور پورے پاکستان کا لیڈر ہے، انہیں رات تک اس کے اوپر، اس پولیس والے کے اوپر ریمانڈ پہ مطلب FIR کاٹ چکے تھے. مطلب قصہ ہوا 28 ستمبر کو اور آج نومبر کے اندر جلدی رات کے 10 بجے FIR کاٹ دی. عمران خان نے کہا اس سے کیا واضح ہوتا ہے، آپ یہ سن لیں. اس سے یہ واضح ہوتا ہے ایک طاقتور لوگ تھوڑے سے وہ جس وقت چاہیں آپ کو قید میں رکھ سکتے ہیں. ہائی کورٹ آرڈر دیتے ہیں وہ آپ کو قید میں رکھیں گے، وہ رکھ سکتے ہیں. اور جس وقت چاہے آپ کو رہا کر سکتے ہیں. جیسے نواز شریف کے کیسز 2 دن میں ختم، جو اربوں کھربوں روپے جو مقصود چپڑاسی کے جیسے اکاؤنٹ میں تھے وہ 2 دن میں کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں ان کے اوپر جو گواہی دی گئی کہ یہ جو بھلے والے اور مقصود چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے، کیا پتہ انہوں نے پہلے کما کے رکھے ہوئے ہوں اربوں روپے. 2 منٹ میں سب کیسز کا سفایا. جو اس کے گواہ تھے وہ اس دنیا سے بھی جا چکے ہیں، اب بھیج دیے گئے یا چلے گئے، ہمیں کیا پتہ ہے. لیکن ان کے کیسز بالکل کلین سویپ صاف ہو گئے، بالکل وہ دھل گئے اپنے ہر جرائم سے. اور عمران خان جو اپنے کیسز سارے سے میں خیال میں رہائی کی طرف آ گئے، جب کل رہا ہو گئے تو انہوں نے رات کو
इस किस्म का केस बना लिया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख है, ये मेरी फ़ाइनल कॉल है। आपने इसके ऊपर ये बिल्कुल ना सोचें, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जो आपको बरगलाया जा रहा है, ये 24 तारीख की डेट आपके लिए बड़ी अहम है। और ये 24 तारीख को उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दी है। उन्होंने फिर से कहा है कि मैंने सिर्फ जब से मैं कैद में हूँ मैंने 2 कॉलें दी हैं। एक मैंने कॉल आपको 8 तारीख के लिए दी थी फरवरी में कि आप इलेक्शन के लिए वोट डालने ज़रूर निकलें। आज ये सिर्फ मेरी दूसरी कॉल है कि 24 तारीख को कौम सारी निकले। इसलिए निकले क्योंकि आपने अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आपने अपनी आवाज़ उठानी है। आपने पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना है। आपने उन्होंने जजेस का कहा, उन्होंने कहा जजेस और लॉयर्स, आपको ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि जो आजकल ATC का कोर्ट का हाल है कि जजेस को जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो उसी किस्म का ऑर्डर लिख देते हैं, उसी तरह आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हाल हो गया है। आप जजेस को वो कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाएं, इस पाकिस्तान आप लोगों ने आगे पाकिस्तानियों को इंसाफ देना है। आप हमारे पाकिस्तानी अपनी कौम के लिए खड़े हों ताकि आप हमें सही तरीके से इंसाफ दे सकें। और इसका पहली निशानी जो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इन्होंने हाथ बढ़ाना है तो 24 तारीख को उन्होंने कहा है कि जब पाकिस्तानी आके बैठेंगे इस्लामाबाद में, आपने तब तक बैठना है जब तक जो नाजायज़ इन्होंने कैद में डाला हुआ है पॉलिटिकल वर्कर्स को, जिनको ये कहते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो सारे कैदियों को पहली आपका क्या कहते हैं जेस्चर है या पहले आपने जो एक हाथ बढ़ाना है, सारे कैदियों को रिहा करें। हम उसके अंदर अपनी तरफ से इसमें डालेंगे, हमें तब ये मैं खुद शामिल कर रही हूँ, इमरान खान ने नहीं कहा कि उसके अंदर इमरान खान भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल से हमारे भाई जिस कैद में हैं और हंसते हुए आते हैं। आप जो रिपोर्टर्स अंदर जाते हैं उनसे पूछ लें कि उन्होंने कितने सब्र से ये 1.5 साल काटा है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनको देख के हम लोगों को बहुत हौसला आता है, लेकिन बहुत हो गई है। हमने उनको कहा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमने उनको कहा आज कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको जो मैंने जब कहा है वो होगा, और वो 24 तारीख है। इससे 24 तारीख को सारे पाकिस्तानियों को इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ अपने हक़ के लिए आप खड़े होंगे। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की किसके ऊपर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे। ये अब मैं पैगाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए हो गया, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। उन्होंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान के लिए जो सबसे हमारा पाकिस्तान का कीमती असासा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। आप सुन लें, आपके ऊपर उन्होंने एतमाद किया हुआ है। उन्होंने कहा आप देखना सारी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकलेंगे एहतजाज के लिए। क्यों निकल सकते हैं? क्योंकि उनके मुल्क आज़ाद हैं। ये आज़ाद मुल्कों में पाकिस्तानी हैं, वो वहाँ पे निकल सकेंगे। आप देखना पाकिस्तान में आज़ादी होती तो हम भी निकल सकेंगे बड़े और अमन तरीके से, लेकिन वहाँ पे ये पाकिस्तानी निकलेंगे। कहते हैं जब पाकिस्तान बनाने का वक्त आएगा, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान में, हमारा पैसा भी बाहर जा रहा है, हमारे लोग और जिसको कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन है, लोग भी, हमारी जवान नस्ल भी बाहर जा रही है। कैसे हमने पाकिस्तान को दोबारा बनाना है? जब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही आएंगे। और वो कब आएंगे? जब उनको एतमाद होगा कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इसलिए ये चीज़ें दोनों जुड़ी हुई हैं, इंसाफ और इन्वेस्टमेंट। और आप लोगों ने, आपको दोनों, पाकिस्तान को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त। और आपने पाकिस्तान में ये शुरुआत करनी है कि हमें हक वापस मिले, हमें इंसाफ। जो इमरान खान ने 3 मुतालबे किए हैं, इमरान खान ने कहा है रूल ऑफ लॉ, अदलिया की आज़ादी की बात की है। उन्होंने हमेशा स्टोलन मैंडेट
जो जमहूरियत की बात की है और उन्होंने कहा है जो नाहक कैद में हैं उनकी आज़ादी की बात की है। तो आज आपको पैगाम मिल गया 24 नवंबर का। क्या कहा खान साहब ने, क्योंकि आपने कहा कि रात को उन पर FIR दूसरी आदमी जा चुकी है। हाँ, तो अगर उनकी नीयत अच्छी होती और अगर वो कहते कि जब तुमको बेल हो गई थी तो उनके ऊपर केस क्यों डाला गया, जब वो तो रिहा हो गए थे। इमरान खान हामी भर ली थी खान साहब ने 10 दिन का टाइम देने की। नहीं, उन्होंने कहा उनकी नीयत ही समझ आ गई कि कल उन्होंने जो आज रात तक उन्होंने उनको फिर से अरेस्ट कर लिया। इमरान खान तो रिहा हो गए थे, अरेस्ट क्यों हो गए आप बताएं। हम तो आज उनको लेने आना था हमने आज। तो ये जुमेरात को कहा था खान साहब के 2 दिन के लिए, आज जुमेरात है, क्या आप उसके बाद आगे को टाइम देंगे या आज फाइनल है? इमरान खान आज रात को आपको पता है जब बात हुई थी और आज में डेवलपमेंट्स भी तो हो गई है ना। इमरान खान रिहा होकर दोबारा अरेस्ट हो गए। यहाँ रोज़ एक नई चीज़ हो जाती है तो उसके अंदर उसके मुताबिक ही फिर वो उसका आएगा ना रद्द अमल। और उन्होंने कह दिया कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप पिंडी बैठेंगे जब तक इनका जो इमरान खान के 3 मुतालबों में जो पहला आसान मुतालबा है, नियतों की बात हो रही है ना इस वक्त, आप सारे नाहक कैदियों को रिहा करें इमरान खान समेत। इस्लामाबाद में कंटेनर्स तो पहुंच गए हैं, आप कैसे दाखिल होंगी इस्लामाबाद, क्या प्लान है? देखिए मुझे नहीं पता, हम तो कहीं खेतों में से पहुंच जाएंगे अगर हम पहुंचना चाहें, अगर हमें पहले उन्होंने अरेस्ट ना कर लिया। लेकिन इस्लामाबाद में एहतजाज हमारा आईनी हक है। हमने ना कभी PTI ने ना इमरान खान ने ना उन्होंने कॉल दी है। उन्होंने हमेशा कहा पुरअमन एहतजाज, जो हमारा आइन हमें हक देता है। तो कोई हमारे से ये क्यों छीनेगा? जो छीन रहा है, जो यहाँ टीयर गैस फेंकते हैं, जो लोगों पे अगर जुल्म करने की कोशिश करते हैं, वो गैर आइनी इक़दाम उठा रहे हैं। मरियम बीबी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये अच्छा साइन है, मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात गवर्नमेंट से हों, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं। आपका मतलब है मरियम नवाज़ लंदन से ये पैगाम भेज रही है? पाकिस्तान आ गई है। अच्छा, आ गई है। मेरी बात सुने, आपको पता है कि यहाँ पे वो खुद सारे कहते हैं, नून लीग वाले समेत सारे, जिनसे बात करो वो TV पे बैठ के कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो उनसे किसने मुज़ाकरात करने हैं? नाराज़ है। देखें, उन सारे पाकिस्तान को पता है इस वक्त उनके हाथ में क्या है। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक जो जुल्म है वो मरियम नवाज़ के हाथ में है, उसको ये शौक़ है पुलिसें भेजो, ये उनका काम है, पुलिस भेजो और जुल्म करो लोगों के ऊपर। इसलिए उनकी बात टाइम ज़ाया करने वाली बात। मुज़ाकरात जुमेरात तक दिन दिया गया था कि जुमेरात तक मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आज जुमेरात हो गई तो मतलब अब मुज़ाकरात आगे नहीं होंगे। वही तो बताया आपको कि उसके बाद इमरान खान कल रिहा भी हो रहे थे, जो जायज़ तरीके से रिहा हुआ थे। रात तक उनको फिर कैद में, आज सुबह आके जज ने बैठ के उनको 5 दिन का रिमांड